morning children. How are you all? I hope children you all are fine at your home. Okay, we met recently, right? Sunday ko mile and for 3-4 students I met yesterday, right? Okay, I felt nice. So it was our meeting for PTM, right? For a result की हमारी meeting थी. Okay. Now कुछ बच्चे still they couldn't come on PTM. So it's very bad children. I want your 100% result on PTM. Means 100% attendance. All of you have to come whatever may be the situation. Okay. With definitely your parents. If your parents are not there, some guardians, relatives, neighbors. But do try to come children. Okay. Anyways, now come back to our topic. So we will come back to our topic. It's transformation of sentences. Now what do you mean by transformation? Transformation means changing. एक से चीज से दूसरे में change होना. So today we will know about how to change sentences from positive to negative, from simple sentences to interrogative one or to exclamatory one. Means जो positive to negative means जिसमें no not होता है, नो ना नहीं जिसे हम कहते हैं, नो नॉट जिसमें हमें मिल जाए उन्हें हम वी कॉल देम नेगेटिव सेंटेंसेस. सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. पॉजिटिव मीन्स व्हेन यू से आई विल रीड और आई रीड और आई डू दिस और आई विल डू दिस. ओके. एंड इफ यू से आई डू नॉट डू दिस और आई विल नॉट डू दिस, सो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस व्हेन यू से नो नॉट. एंड व्हेन यू से यू विल डू इट, सो इट इज पॉजिटिव सेंटेंस. सो टू चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू negative, first thing. Second, to change from simple sentences to interrogative and exclamatory. Now interrogative and exclamatory means interrogative means where question marks comes, means जब आप question पूछते हो. So simple sentence is I will go there. Okay. And when you ask shall I go there, or means then you are asking here question. So these are called interrogative sentences. And in exclamatory sentences you just write an exclamation mark where you just say your feelings about it. Okay. Now exclamatory sentence, it might be see children, okay children. Now so exclamatory means when you have express your feelings. Like for example, you see a beautiful scene. Now if you say it is a very beautiful photo, and now when you have to change it into exclamatory, you say that what a beautiful photo or how the beautiful photo it is. So now it has changed into exclamatory. So in this chapter we will know about simple sentences, positive sentences, how to change them into negative one, how to change them into exclamatory or interrogative sentences. Okay children. So I will tell you some examples, then you will definitely able to come to know what I want to say you. Okay. जब मैं आपको कुछ examples देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. Okay. Now I know some students might be feeling difficult to understand me. उनको कुछ मेरा मतलब है कि उनको कुछ difficult feel हो रहा होगा मेरी बात समझने में, because today I am talking very much in English. But children, if I will not start doing this, then you will not be able to understand English. अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, then you will not be able to understand English. So it is necessary. I know you might be facing some difficulty, but if you will continuously on hearing this, then it will become a habit and regular thing for you. मतलब अगर आप सुनते सुनते रहेंगे तो आपको एक हैबिट पड़ जाएगी. ठीक है. एंड देन आपको बहुत अच्छे से एटलीस्ट एनीबडी वुड बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दैट सो एंड सो पर्सन इज क्या कह रहा है. ओके. वो पर्सन क्या कहना चाह रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. व्हाई? बिकॉज यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ हियरिंग इन इंग्लिश. ओके चिल्ड्रन, आई नो यू कांट स्पीक, बट आई थिंक आई वांट यू टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड इंग्लिश. अगर आप समझने लग जाएंगे तो डेफिनेटली वन डे यू विल स्टार्ट स्पीकिंग. Okay children, and in my live class I request you all to talk as much as in English you want. You can in fact try children. Okay, do try yourself. Now let's I will give you some examples. Now see, for example, the wrapping paper is blue.
Now this is a simple sentence, and if I change it into a negative sentence, then I would say the wrapping paper is not blue. वो blue नहीं है. Now the sisters are helpful. The negative sentence, the sisters are not helpful. I am an Indian. I am not an Indian. So positive to negative one. Okay. Now see. For example, now this was in simple tense. Now if in simple present tense, if as you know in simple present tense s comes with a singular noun, right? For example, the baby plays. Now for this to change it into negative one, you have to write the baby plays. Now where s comes in simple present tense, in singular noun where s comes, you have to use does. You have to use does. The baby does not play. Okay. Now the baby plays. Now from here you have to cut the s and you have to write it here. आपको उधर से कट करके इसमें लिखना है. Okay, the baby does not play. अब not तो आ गया, but the baby does not play. ठीक है, ये तो आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में. और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस नहीं होता, जब हमारा प्लूरल नाउन होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, आई रीड मैगजीन्स और दे रीड magazines. So I will say that they do not read magazines. तो इधर what you have done, आपने क्या किया है, आपने इधर there is no s नहीं है, तो इसलिए आपने do कर दिया. Okay, and if s is there, the baby plays, singular noun है, simple present tense है, तो s होगा, तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, does. Okay children, we will write does, and if it is plural and no s is there, so we will write do. Okay children, do remember this. Now see, I am saying children, plural हो गया, so I am saying do remember this, do carry. और एक चाइल्ड होता तो प्लीज डू रिमेम्बर, मैं डेफिनेटली आई वुड हैव सेड इफ नेगेटिव वन सिंगुलर नाउन इज देयर, ही डज नॉट डू इट, राइट? And if plural is there, do that, or he do not do, children do this, right? Do, and they do not do this, they do not. So with plural, do will come in simple present tense, in singular noun in simple present tense, does will come. And definitely it is, if it is a negative sentence, अगर negative sentence है, then you have to write not. ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव आपको चेंज करना है. ठीक है. नाउ ऑलवेज रिमेम्बर चिल्ड्रन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर नाउन डज विल कम, एंड इफ प्लूरल नाउन इज देयर, देन यू हैव टू राइट डू. ओके, एस नहीं आएगा. नाउ कम टू पास्ट टेंस. नाउ इन पास्ट टेंस D और ED is there, you also know, and we change some verb to run का ran कर देते हैं, right? Catch का caught कर देते हैं. तो how will you change these sentences to negative one? अब हम इनको क्या चेंज करेंगे? Now जैसे आपने simple present tense में do या does लगाया था, in past tense we will write did. We will write did not. Okay. अब इस डिड नॉट के बाद हम जो वर्ब आएगा, वी विल चेंज दैट वर्ब टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जो फर्स्ट फॉर्म होता है, रन होता है, कैच होता है, बाय होता है, गो होता है. तो ऑलवेज रिमेम्बर डिड के साथ जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, यानी कि सिंपल वर्ब. जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जो सिंपल वर्ब होता है, जिसके बाद आप उसको कैच का कॉट कर देते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल ईट का एट कर देते हो, फिर मैंने आपको ईटन कर देते हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, ईट, एट, ईटन. ठीक है ना. एंड कैच, कॉट, कॉट, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन. तो ये मैं आप पार्टिसिपल्स आपको मैंने करवाए थे, राइट? तो जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो ईएन या इससे खत्म होती है, राइट? कैच, ड्रिवन, राइजन. अभी हमने कॉट किया था, कैच, कॉट, कॉट किया था हमने, राइट?
तो ईट एट ईटन किया था। तो इसमें जो है हम हमेशा डिड के साथ ऑलवेज रिमेम्बर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल कम, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। मीन्स बाय, कैच, रन, ईट, ड्रिंक, स्लीप, वॉक, रीड। सो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो आपने वर्ब वर्ड्स पढ़े हैं कि वर्ब होते हैं ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। जो वर्ब्स आपने पढ़े हैं सिंपल वर्ब्स दे विल कम, ठीक है। इसमें एस ई एस का आपको पता है पास्ट टेंस में हमें कोई मैटर नहीं करता वेदर आवर नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, इट डजंट मैटर। हमें उसमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है पास्ट टेंस में कि हमारा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। हमें तो सिंपल उसमें डी आई डी लगाना होता है या मुझसे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना होता है, राइट। जब हमें सिंपल पास्ट टेंस में पता नहीं चलता तो हमें जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में भी चेंज करेंगे देन आल्सो इट डजंट मैटर, तभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें वी आर यूजिंग एस और यस और नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो वी विल राइट डिड, ओके, ऑलवेज, एंड विद डिड ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल अगर चलो आपने सिंपल कंटिन्यूअस भी करा है उसमें आई एन जी आता है तो उसमें सिंपल आपको करना है आई एम बेकिंग अ वेनिला केक, आई एम नॉट बेकिंग अ वेनिला केक। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। सिंपल सेंटेंसेस है। अपना पास्ट टेंस में आप क्या करोगे, आई रेड मैगजीन्स, तो आप सिंपल करोगे आई डू नॉट रीड मैगजीन्स, सिंपल। नैना राइट्स शॉर्ट स्टोरीज, नैना डज नॉट राइट, ओके। अब नाउ कम टू पास्ट टेंस। Now when past tense will come, for example, Raj called the teacher. Raj called the teacher. Raj called the teacher. तो हम इसमें कर देंगे Raj did not, ये तो हो गया हमारा नेगेटिव में, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा call, सिंपल। Call the teacher. Raj did not call the teacher. तो ऐसे आपको ईडी में आपने डिड लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपका आ गया। आई डू नॉट रीड बुक्स, ओके। तो ऐसे आपको सिंपल पास्ट टेंस में करना है, ओके। चलो, तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। नाउ सी, नाउ सी चिल्ड्रन, पेज 123, learn exercise. Now what you have to do is, children, you can do this in book only. आप इन सेंटेंसेस को बुक में भी कर सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ। नाउ सी चिल्ड्रन, फर्स्ट मैं आपको सारे सेंटेंसेस लिख दूं, देन आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू डू दिस, ओके। Now see children, आपको फर्स्ट दिया हुआ है जेसिका डाइड हर जीन्स पिंक। Her jeans pink. Now second is, please donate second hand
to the library after this. Okay, now come to third one, children. The buffalo chased him around the park. Chased him. Okay, वो आपका फर्दर जो आपका सेंटेंस है. नाउ कम टू फोर्थ. द पेशेंट टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ. Care of his health and so on. Now come to fifth one. The teacher prepares the report card and so on. Now come to sixth sentence, children. I am a trained dancer. I am a trained dancer. Now seventh, we will fry eggs for breakfast. We will eggs for breakfast and so on. Now come to eighth. Neha and Sahil practiced for and so on, children. Now come to ninth one. We go to the temple. Tenth is the baby is asleep. Okay, children. Now see how we will change these sentences to negative one. See, children. Now here see died. D is written. तो ये तो हो गया आपका पास्ट टेंस में, राइट. अब आपको इसको नेगेटिव सेंटेंस में करना है. तो हम करेंगे, आप इसके बीच में ऐसे लगाना, मीन्स इसका मतलब है कि सेंटेंस के बीच में आएगा. अब पास्ट टेंस है तो एक तो हम इसको यहाँ से डी करेंगे, हटाएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. तो जेसिका डिड नॉट डाई हर जीन्स पिंक. ठीक है, ऐसे. अब डी था तो डिड लिख दिया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया. नाउ प्लीज डोनेट सेकेंड हैंड बुक्स. सो अब ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो नेगेटिव सेंटेंस में तो आप प्लीज मत यूज करना, या आप कर भी देते तो यहां पे हम ऐसे कर देंगे, प्लीज डू नॉट डोनेट सेकेंड हैंड बुक. सिंपल आपको इतना करना है. अब हम इसमें ऐसे ये लगाएंगे क्योंकि इधर एस है ही नहीं, वर्ब में हमारे एस है ही नहीं. ठीक है, इसलिए हमने एस नहीं लगाया. नाउ द बफेलो चेज्ड हिम टू द पार्क. जो भी सेंटेंस नाउ चेज्ड आपका पास्ट टेंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू इज डी कैंसिल करेंगे, पास्ट टेंस को हटाएंगे, सेकेंड उसका डिड कर देंगे.
द फेलो, इधर हमने लिखा डिड नॉट चेज हिम, सिंपल। नाउ द पेशेंट टेक्स केयर, अब देखो इधर ऐसे है और एक ये पेशेंट है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम इसको ऐसे करेंगे और इधर से एस हटाएंगे और इधर हम कर देंगे डज नॉट टेक केयर। नाउ कम टू फिफ्थ वन, द टीचर प्रिपेयर्स द रिपोर्ट कार्ड। नाउ हेयर आल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंगुलर नाउन, इसलिए एस है, तो सबसे पहले एस को हटाएंगे, इधर हमने लिखा तो एस का क्या आ जाएगा डज, द टीचर डज नॉट प्रिपेयर द रिपोर्ट कार्ड्स। नाउ आई एम अ ट्रेन्ड डांसर, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड डांसर, सिंपल। ओके, नाउ सी, वी विल फ्राई एग्स फॉर टेस्ट, we will not fry eggs for simple children. Now Neha and Sahil practice for, अब practice है डी हटाएंगे, इधर हमने ऐसे लगाया और इसकी जगह क्या कर दिया did not practice, we go to the temple. Now see children, हम क्या करेंगे उसमें, हम सिंपल वी डू नॉट, गो टू द टेम्पल, द बेबी इज सिंपल, द बेबी इज नॉट एस्लीप, एस्लीप मतलब सोना, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज तो आपकी हो गई। रेस्ट एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ए बी एंड सी, डेट वी विल डू टुमारो, बिकॉज मैं चाहती हूँ आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो, आप आज अच्छे से सारी एक्सरसाइज ये तो करना, जितने एग्जांपल्स दिए अच्छे से पढ़ना, वीडियो अच्छे से देखना, एंड देन वी विल डिस्कस इट इन लाइव क्लास। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन लाइव क्लास, ओके चिल्ड्रन, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू चिल्ड्रन प्लीज come in live class as much as you can, okay, this is a humble request children, please. Okay children, so that's for today. Bye everyone, thank you, bye for today children.